Good evening, viewers. Thank you for joining us in our Bharat Vibes. Today, we have with us Shri Praveen Raghavendra, Chief General Manager, Mumbai Metro Circle, State Bank of India. Good evening, sir, and a very, very warm welcome to you. Good evening. Good evening. I, Vivek, along with our senior business editor, Mr. Vishnu Bharadwaj, will be your host. Welcome to the webinar organized by Navbharat Media Group on the topic Challenges and Future of the Banking Sector Post-COVID. Shri Raghavendra joined State Bank of India in the year 1990 as a probationary officer. He currently holds the position of Chief General Manager, Mumbai Metro Circle from 18th April 2020 onwards and envisaging a branch network of almost 430 branches and 42 administrative and back offices. A science graduate in honors by qualification, he has completed his LLB and JAIIB as well. He has held various positions during these 31 years of his career with the bank, which includes working in the retail business, human resources, heading the regional business offices, administrative offices in different capacities and capabilities across India, ranging from Guwahati, Jamshedpur, Patna, Chandigarh, and Maharashtra. Prior to his appointment as Chief General Manager of Mumbai Metro Circle, he was heading the Network 1 of the Circle as General Manager and leading the bank operations in southern and eastern Mumbai from 2018. He is a music lover by nature and has fascination for traveling. I'm sure, sir, your views and insights will be very, very helpful to our viewers. Let us now move to the question and answer session. With merger of associate banks with SBI, the size of SBI Maharashtra Circle has become very, very big, and it is subsequently divided into two parts, SBI Mumbai Circle and SBI rest of Maharashtra. How many branches are under SBI Mumbai Circle, and how many employees work in these branches, sir? So right now we have 434 branches. Apart from the branches, we have various processing centers also here for retail business processing and SME processing. And then we have administrative offices and the regional business offices. So altogether, if you will see, it will be the number of offices, including the branches, it will be somewhere more around 450 plus. And we have roughly around 6,700 employees working in this Mumbai Metro Circle. Okay, so that's a very, very huge number. Yeah. I believe, sir, this size must be almost equivalent to a smaller bank. Yeah, it may be equivalent to a smaller branch, and more so because you know that the circle has a business size is what matters for a bank. So we have almost a business size of here around 2,60,000 crore. So all these branches cater to 2,60,000 crores, where in the liability side we have around say 2,12,000 crores, and in asset side we have around 54,000 crores. Yes, sir. Yes. Sir, the next question. Banking sector in India is undergoing a phenomenal change. What is the role played by SBI, being the biggest bank in India, in this metamorphosis? Yeah, you see, all of you know that the State Bank is the largest bank of the country with a vast network of branches, almost more than 23,000 branches we have, more than 50,000 ATMs, and then the customer service points also, what we call BC. We have large number of BCs also all across the country, right from Jammu and Kashmir till Kerala, if you see. And then we have a huge customer base of roughly around 47 crores. So you can say that this bank is a banker to every Indian in a way. So these are certain strengths, and our customers, we keep whatever we do, we keep our customers in the center. And we accordingly, we evolve our products, our processes, and our structure is based on the customers.
So as you know that the economy is growing fast and the India economy is one of the leading economies in the world. And so we are also evolving in the banking sector continuously, and we are looking at what the preferences of the customers of the present generation is there and what the customer requires. The requirement of the customer 10 years ago or 20 years ago, it was totally different what the customer requires today. So more focus we are giving towards the digital, that how the customer can transact through the digital banking, and he need not visit the physical branches. But altogether, I must say that physical branches are also required in a country like ours. So we are more focusing on physical. So physical plus digital. So that is our approach. And we are addressing our banking concern in both ways, that our branches presence are also required and then digital presence is also required. And in coming years, I believe that not only the retail will play a dominant role, but post-COVID, this corporate loan and the MSME loan, this will be much in demand. So we have designed our products and processes accordingly, and that is how we are moving forward. Sir, the third question. What are the steps taken by SBI during COVID-19? COVID-19 में सर आपको सभी को पता है कितनी सारी तकलीफें आई, लॉकडाउन हुआ, सीरीज ऑफ लॉकडाउन हुआ, पहला फेज आया, दूसरा भी आया, तीसरे वेव की भी संभावना है. So what steps was taken by SBI to spread awareness and to prevent the people getting infected by the staff who were attending the offices? What steps were taken to prevent them from getting infected, and also the customers who visited the branch at that time? You see, when the COVID struck, nobody was well prepared that how to face it. But banking being a essential services, we evolved on ourselves that how should we go about it. So initially we started with all the SMS protocol that the COVID protocol, social distancing, masking, and sanitization. That was at the initial phases. We told our employees that you have to follow these mandates, which we continue to keep on saying till now. And thereafter, the sanitization part, each branch was sanitized every evening. We also purchased sanitization machines at various branches, various offices. And also we created the COVID Marshal in the branches. The COVID Marshal, the role of the COVID Marshal was to take care that every employee is following the COVID protocol. And also with social distancing, we started the customers also to enter in the branches. Then the customers were also encouraged to use the digital platform and do not visit the branches wherever it was not necessary. Then still after that also, that in the first phase, many of our employees got affected during that time. So we have entered into tie-up with so many hospitals all across the Mumbai. And also we created isolation centers by hiring a few hotels where our employees can go and remain isolated during this time. So that was one area. Then secondly, what we did that the alternate day working also we started wherever the number of staffs were more, because there was initially a restriction that you can have only 15% of the staff in the branches or 25%. So depending upon the requirement, the employees were also called to the branches, and thereafter the services were rendered. Initially, the state level bankers committee, they decided to have only 4 basic services. That was the receipt of cash, payment of cash, and remittance, and then some government transactions and government benches. These were the 4 services that we were providing in COVID-19 phase 1 also, and in phase 2 also on the similar line we were providing. Despite taking all these precautions, that many of our staff members were affected, and altogether in my circle, I think 1,600 people got affected with COVID, and we lost some of our employees also. Almost 30 employees we lost in phase 1 and phase 2 included. So these were certain steps that were taken during that time, and still we are following all these protocols. We keep on saying our people that you have to have all the digital meetings as far as possible. Physical meetings we are avoiding, and we are trying to propagate the digital channel for our employees. We have brought so many products on our digital platform also. So these are certain things which we did and which we are still evolving and trying to do. सर, जिन एम्प्लॉय की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, तो क्या एसबीआई ने उनको कुछ तरह से कंपनसेट करने का या कुछ तरह से उनको
उनकी फैमिली को ईज करने के लिए कोई कदम उठाए? हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले तो अगर कोई कोविड से अफेक्टेड हो गया तो उसमें हम लोग इंस्टेंटली 20,000 रुपीज उसको दे देते थे, क्योंकि ये कॉस्टली अफेयर है। ऑल्दो हमारे कई हॉस्पिटल्स के साथ वी हैव एंटर्ड इनटू टाई अप, what I told in the beginning also. And during what happens that when you have entered into tie up with the hospitals, then it becomes a cashless facility. So whenever the employee wants, he can enter in that hospital by showing his identity card, and the cashless treatment starts. But nevertheless, we gave 20,000 to each COVID employee. And in case somebody unfortunately he expired during treatment, then we have the provision that 20 lakh rupees instantly we pay, or if he is willing and he is eligible for the compassionate appointment, then the immediate जो उसके dependent हैं उसको हम लोग compassionate appointment भी provide करते हैं. Apart from that, there are various initiatives the bank has taken, like dependent children जो हैं उनके education का खर्चा graduation तक बैंक पूरा उठाती है, या फिर उनको 1 साल तक हम सैलरी भी उनके जो डिपेंडेंट है उनको वही फुल सैलरी we keep on providing. Then in terms of the housing facility also, we provide them housing for a certain limited period of time. So there are various steps that we took during that time also, and now also we are taking. सर, इनमें वैक्सीनेशन करने की भी कोई प्रोग्राम एसबीआई ने किसी के साथ कंबाइन करके कुछ ऐसा हेल्प किया या करने? नहीं, अभी देखिए जब से वैक्सीन आया यहाँ पे तब से व्हाट वी आर प्रोपेगेटिंग दैट vaccination is the top priority, and we have to not only get our employees vaccinated, but their dependent and also the entire ecosystem in and around that employee, that we are focusing that they should be vaccinated. So the SBI has entered into tie-up with many various hospitals here, and we arranged around 6 camps all across the circle, and so far our 80% of the employees have been vaccinated. Recently on 3rd of this month also we had a vaccination camp at our local head office here, and where we are not insisting only that the employees would get vaccinated, but the dependent family members, their spouse and their parents or parents-in-laws or children, whoever stays with the employee, they should get vaccinated. So vaccination पे हमारा बहुत जोर है, और हम इंश्योर करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग 100% का नंबर क्रॉस करेंगे इसमें. बस वैक्सीनेशन करने से ही ये संभावित होगा कि आगे चलकर कि ये मतलब कोविड पर कंट्रोल हो पाएगा. प्रोबेबली दैट इज द ओनली वे. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. कोविड के टाइम्स में बैंकिंग आवर्स काफी इफेक्ट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने पर शायद बैंकिंग आवर्स एक्सटेंड भी किए गए. तो फिलहाल कितनी घंटों की मतलब ब्रांचेस फुल टाइम चल रही है, या कहीं पर फुल टाइम है, कहीं पर लॉकडाउन का स्थिति से कुछ टाइम की ऑल्टरेशन भी की गई है? नहीं, जैसा हम आपको पहले भी बताए थे कि ये स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि किस एरिया में हमको कितने देर तक बैंकिंग आवर देना है. इनिशियली हम लोग 4 आवर्स का बैंकिंग दे रहे थे, 10 बजे से 2 बजे तक. आजकल इसको बढ़ा के 3 बजे तक किया गया है, लेकिन इनिशियली एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट ओनली 4 essential services were being provided, but now we are providing all kinds of services in from 10 to 3. और इसके अलावे आपको बताएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसलिए इंकरेज करते हैं कि एनीबडी कैन यूज आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म 24/7 एंड दे कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू दैट. तो हमारा ये फोकस रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने डिजिटल पे ले जाएं. और हमारा एक ऐप है योनो ऐप, यू नीड ओनली वन, which is only not only for banking but also lifestyle. We have entered into tie-up with so many commercial establishments जहाँ की आप परचेजेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. और इस योनो प्लेटफॉर्म में ना तो केवल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और एसेट प्रोडक्ट हमने डाला है, बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं वहाँ. जैसे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं SBI म्यूचुअल फंड में, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं SBI लाइफ की कोई पॉलिसी लेने में या जनरल की कोई पॉलिसी लेने में, तो वो भी आप उसके माध्यम से कर सकते हैं. In fact, if you want to open one account, suppose you are not a customer of State Bank and you want to open a saving bank account, so now the bank has come out with the video KYC facility also. So if you download this Yono app, then through video KYC you can open saving bank account also. So ये काफी हम लोगों ने इसमें इवॉल्व किया है कि कैसे हम कस्टमर से बिना इंटरैक्ट किए हुए उनको सारी सुविधाएं हम प्रदान कर सकें. That is our endeavor. तो सर, ये कोविड ये डिजिटलाइजेशन तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री की भी प्राथमिकता थी,
और उसको काफी कुछ आगे बढ़ाया है कोविड ने। मतलब कोविड की एक अगर हम बैकअप एडवांटेज बोले तो मतलब विद ऑल द पेंडेमिक, बट उसके कारण ये डिजिटलाइजेशन में काफी बढ़ावा हुआ है। पीपल जो लोग नहीं यूज करते थे वो भी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक दे आर ऑल्सो लर्निंग एंड यूजिंग इट। तो आपको क्या लगता है ये पिछले 1.5 साल 2 साल में, जब से 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है, कितना फुटफॉल कम हुआ है विदाउट अफेक्टिंग द बिजनेस, या कितने डिजिटलाइज्ड वे में वर्किंग बढ़ा है आपके क्षेत्र में सर? आप देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि मोर देन 90% ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड द ब्रांच प्रीमाइस। बट डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में वी आर समवेयर अराउंड 70%। बट इसके साथ अगर हम और भी सब ऐड कर देते हैं तो वो 90% प्लस है जो हम आपको बताया। और इसमें हमारा प्रयास है कि सपोज somebody has taken internet banking from us but he has not downloaded the YONO app where so many services are provided. So we are encouraging customers by writing through email, और उनको बल्क SMS हम भेजते हैं कि आप योनो को डाउनलोड कीजिए। एंड वी ऑल्सो सी दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर विजिटिंग दैट ब्रांच फॉर व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो वहाँ इंकरेज करते हैं। प्लस उनको ऐसा भी करते हैं, जैसे अभी हमारे पास एटीएम की तरह ही एक और मशीन है जिसको ऑटोमेटिक डिपॉजिट एंड ऑटोमेटिक विड्रॉल बोलते हैं, ADWM, वेयर यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश। 50,000 तक का कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यू नीड नॉट गो टू द ब्रांचेस। Then we have also have the passbook printer machine at various our customer service points, जहाँ की पासबुक आप जाके अपडेट करा सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रिकॉशंस और इन सब के चलते बहुत सारे लोग जो हैं सो अभी ब्रांच में आना उनका कम हो गया है। दे आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम होम इटसेल्फ। लेकिन फिर भी अगर किसी को जरूरत होती है तो जरूर दे कम टू द ब्रांचेस। काफी नंबर कम हुआ है इसमें। विष्णु जी आगे की सवाल आप पूछें 2-3। हाँ सर, नमस्कार सर। ये आपने बताया कि SBI मेट्रो सर्कल का बिजनेस 2,60,000 करोड़ हो गया है, तो आगामी 2 से 3 साल में क्या देख रहे हैं सर, कितना बिजनेस देख रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि दिस सर्किल वाज क्रिएटेड एज, शुरू में भी वो बता रहे थे कि विवेक जी की महाराष्ट्र सर्किल से दिस वाज डिवाइडेड इनटू द 2 सर्कल्स, and the primary focus was that we wanted to bring the Mumbai metro market into our prime focus by serving the customer of Mumbai metro circuit. Because what happened that this was a divided attention when the entire circle was taking care of Maharashtra and Mumbai metro. So this circle was created to primarily focus on Mumbai market, and you know that the GDP में जो contribution है वो मुंबई का सबसे ज्यादा है कंट्री में भी, एंड महाराष्ट्र स्टेट ऑल्सो। सो द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज एंड पोटेंशियल वाइज इट इज वेरी ह्यूज। सो हमारा ये कोशिश है कि वी आर ओपनिंग आवर ब्रांचेस ऑल्सो इन सच एरियाज वेयर वी डू नॉट हैव आवर प्रेजेंस, एंड प्लस वी हैव ऑल्सो इंक्रीज फीट ऑन स्ट्रीट सो दैट कि ये मार्केटिंग में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकें। सो सेल्स एंड सर्विस 2 पॉइंट है हमारे। सेल्स में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकें, और सर्विस में जैसा कि अभी काफी चर्चा हमने किया विवेक जी से भी, इस सर्विस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, सो दैट कि फुटफॉल जो है सो ब्रांचेस में कम हो जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो इस बिजनेस मॉडल से we'll be able to improve our market share and the business in Mumbai metro market. So that is our approach. यहाँ से आप कितना ग्रोथ देख रहे हैं 3 साल में? ये करोड़ की बात तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये नंबर ऑटोमेटिकली आते हैं, and it will depend upon the economy also, that how the economy is behaving. But the model, business model जो है हमारा वो ये है कि हम मार्केट में जितना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकें by increasing the outreach with connectivity with our customers. That is our approach. अगला सवाल मेरा है, SBI मतलब मुख्य रूप से कस्टमर को किस किस तरह की सेवाएं देता है, और लॉकडाउन में ज्यादातर कौन सी सेवाएं कस्टमर ने ली? नहीं देखिए, कस्टमर को सेवाएं तो हम बेसिक सेवाएं जो हैं वो जो है सारी बैंक देती हैं, वो तो हम सेवाएं देते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ लायबिलिटी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एसेट साइड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एंड वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स। जैसे आप देखिए कि हमारे पास अगर आरई का बात करें, रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट में हाउसिंग के लिए हम लोग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन देते हैं, या बिल्डर फाइनेंस हम लोग देते हैं। बहुत सारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको भी हम लोग बिल्डर फाइनेंस देते हैं। अगर आप SME की बात करेंगे तो उसमें MSME के कस्टमर्स हैं हमारे,
जिनको हम देते हैं। ट्रेडर्स के लिए अलग है हमारा प्रोडक्ट। उसी तरीका से अगर आप देखिएगा तो हमारा पर्सनल बैंकिंग में वी हैव वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक पर्सनल लोन है, एक्सप्रेस क्रेडिट है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है ना। अभी हम पर्सनल गोल्ड लोन भी हम लोग काफी बिग वे में दे रहे हैं। और कोविड के टाइम में अगर आप देखिएगा तो पर्सनल गोल्ड लोन में काफी लोग हमारे यहाँ आए because they faced the liquidity crisis at that time और many people lost their job या उनके सैलरी में कट हो गया था and whatever the gold they were keeping at home they wanted to place and take the loan from the bank। तो गोल्ड लोन भी एक काफी हमारा बड़ा। तो ये इस तरीका से आप कोविड में भी लास्ट टाइम भी फेज 1 में अगर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद फ्रॉम सेकंड क्वार्टर वी स्टार्टेड इंप्रूविंग and third quarter and fourth quarter तक जाते जाते it did not look like that there is any COVID or something। So market picked up very fast and people came to avail all sorts of products। I will tell you about the home loan products that in home loan what happened that people wanted to move in bigger houses। They felt the need of a bigger house because work from anywhere हो गया था, work from home हो गया था, तो लोगों को 2 की जगह 3 बेडरूम का फ्लैट में गए। प्लस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उस समय में चार्जेस भी काफी रिड्यूस कर दिया, जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी है। सो दैट आल्सो इनेबलर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनेबलर वर देयर इन द मार्केट एंड प्लस हमारा इंटरेस्ट रेट जो है सो काफी कॉम्पिटिटिव है। अभी भी 6.75 का इंटरेस्ट रेट है हमारा, काफी कॉम्पिटिटिव रेट है। और ये प्रोसेस जो है हमने काफी स्ट्रीमलाइन किया है और होम लोन का जर्नी को हमने इतना सिंप्लीफाई किया है कि वो भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और काफी प्रोसेसिंग सेंटर हमने बना के रखे हैं। इसी तरीके से कार लोन का अगर बिजनेस का बात करें तो उसके लिए भी हमने बहुत सारा प्रोसेसिंग सेंटर बना के रखा है। एसएमई की बात करें तो वी हैव मोर देन 20 एसएमई इंटेंसिव ब्रांचेस वेयर रिलेशनशिप मैनेजर्स आर पोस्टेड देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल द एसएमई कस्टमर्स। सो इस तरीके से काफी प्रोडक्ट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है कि प्रोडक्ट हम कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, व्हाट कस्टमर वांट्स, इट इज नॉट दैट व्हाट बैंक रिक्वायर्स। सो व्हाट द कस्टमर वांट्स आवर प्रोडक्ट इज लाइक दैट एंड व्हाट प्रोसेसेस विल हेल्प टू मेक हिज जर्नी कंफर्टेबल। ये हमारा बिजनेस मॉडल रहता है। तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग एंड देन डिलीवरी इज द की। सो वी वर्क ऑन डिलीवरी ऑल्सो दैट हाउ faster the product can be delivered to the customer। So on these 3 bases we try to grow our business। That is our business model on which we work। थैंक यू सर। अगला सवाल मेरा ये है कि कोविड संकट और लॉकडाउन के कारण अनेक लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, उसमें एसबीआई के लोन कस्टमर भी होंगे काफी, तो उनको हेल्प किस तरह की है? एसबीआई ने क्या क्या स्टेप मतलब रिलीफ उनको दी, किस तरह की? अभी आप देखिए अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें तो एमएसएमई के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टेट बैंक ले आया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसमें कि 10% आपके आउटस्टैंडिंग का कैश क्रेडिट का हम लोग दे देते थे टू मीट एनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम ऑफ दैट यूनिट। उसके बाद हमने उसमें वर्किंग कैपिटल रिसाइकिल को भी चेंज किया कि आपको जो कंफर्टेबल होगा। फिर उनका जो कवर पीरियड था उसको बढ़ाया, मार्जिन को रिड्यूस किया हमने। तो ये सब एमएसएमई कस्टमर्स के लिए किया। अभी सेकंड फेज में अगर आप बात करते हैं तो सेकंड फेज में वी हैव ब्रॉट 3 प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट वी ब्रॉट संजीवनी। आपको फेस आप देखे होंगे कि इस समय सेकंड फेज में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत रही है हॉस्पिटल्स में। तो टू ऑगमेंट द ऑक्सीजन सप्लाई इन द हॉस्पिटल्स this product is meant for that and also the units that are providing the liquid oxygen to the hospitals, they can avail this Sanjeevani product। Second product we brought Arogyam। This is related to all the health sector ecosystem facilities, like the doctors can avail this, pathological labs can avail this, and then also your pharma sector, they can also avail this Arogyam product। And third product we brought for personal loan, this is known as SBI Kavach। And this Kavach is that whoever has been affected with COVID, क्योंकि COVID के टाइम में काफी पैसा लोगों का खर्च हुआ हॉस्पिटल में। So we are there। अगर आपको ये लगता है तो 4 years में हम इसमें 5 लाख तक का लोन देते हैं। आपका रिम्बर्समेंट भी हो सकता है अगर आप कोविड से अफेक्ट हुए हैं 2 महीने पहले एंड आपका हॉस्पिटल का बिल है, सो वी आर पेइंग दैट आल्सो। सो दीज आर बेसिकली 3 मेजर प्रोडक्ट्स दैट वी ब्रॉट इन द सेकंड फेज में जो हम लाए हैं। ये 3 मेजर प्रोडक्ट हमने लाए हैं। इनमें इंटरेस्ट रेट क्या रही है? इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। और इंटरेस्ट रेट आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कवच में हमारा इंटरेस्ट रेट है 8.5 है। 8.5 है इंटरेस्ट रेट कवच में। और अगर ये आरोग्यम और इसका बात करेंगे तो जैसे आरोग्यम में 10 लाख से 100 करोड़ तक का हम लोग दे सकते हैं उसमें।
और उसमें रेटिंग वगैरह के हिसाब से हम लोग इसमें देंगे कि हाँ, रेटिंग के हिसाब से देंगे उसमें क्या आपका, हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि एमएसएमई सेक्टर को इस महामारी में वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए रिजर्व बैंक और सरकार ने कई टाइम पे कई स्टेप लिए और अभी ले भी रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कदम जो है गवर्नमेंट के कितने इफेक्टिव है? नहीं, गवर्नमेंट के कदम बहुत इफेक्टिव है, और आप देखिए जब भी क्राइसिस आया है किसी भी तरह का, या तो हमारे देश में आया हो या वर्ल्ड में आया हो, द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर्स, पर्टिकुलरली द सेंट्रल बैंक, दे टेक वेरियस स्टेप्स कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। और हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कि जब भी आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई का कोई भी स्टेटमेंट आता है, उसमें ग्रोथ को हम लोग बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं कि हमने ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव्स आए हैं जो कि एमएसएमई के लिए ज्यादा हैं, कि एमएसएमई में आप अगर जाना चाहते हैं तो कैसे आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी आप देखिएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट्स आया हुआ है जिसमें कि आप लोन अवेल करके और आगे बढ़ा सकते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 30% ऑफ हमारा एमएसएमई का ही, जीडीपी का 30% एमएसएमई से ही आता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। प्लस कंट्री में अगर आप चाहते हैं कि जीडीपी आपका ग्रो करे तो एमएसएमई को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए, और बैंक भी इसके लिए, सारे बैंक जो है इसमें हम लोग काफी एक्टिव हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को ये मदद करने में हम लोग लगे हुए हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दें ताकि कंट्री का इकोनॉमी जो है सो फर्दर ग्रो करे। इफेक्टिव है काफी आपके हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है कि लॉकडाउन 2 के कारण फिर से मतलब बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ से प्लान किए, मुंबई से, महाराष्ट्र से, हालांकि जिससे इंडस्ट्रीज भी काफी इफेक्ट हुई। हालांकि सरकार और इंडस्ट्री मजदूरों को वापस लाने के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। आपके हिसाब से पूरा नॉर्मल सिचुएशन पूरी नॉर्मल कब तक होती दिख रही है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, पहले भी मैंने बताया कि वैक्सीनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन, अभी इन द लास्ट 2 months वी हैव सीन दैट द वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफी तेज हुआ है, और कंट्री में ऑलमोस्ट हम लोग कई बार 80 लाख तक वैक्सीनेशन पर डे के हिसाब से गया है। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी करेंगे हम लोग, ये लोगों को मदद करेगा कि लोग जहां जहां काम करते हैं वहां वापस आकर अपना काम करें। बट मुंबई में जहां तक माइग्रेशन का सवाल है, लेबर का, हमने देखा है, काफी इंडस्ट्रीज से भी बात हुई है, या जो लोग रियल इस्टेट के बिजनेस में लगे हुए हैं उनसे ही बात हुई है। तो यहाँ बहुत सारे जो मतलब ऑन साइट जहाँ लेबर थे और उनके रखने की व्यवस्था थी या उनके रहने की व्यवस्था थी, और उनको अगर वहाँ काम चल रहा था, तो वैसे लोग जो हैं सो अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं और वो काम धीरे धीरे चल रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। कोविड फेज 1 में हमने देखा था कि टोटल डिसरप्शन था इकोनॉमी का फॉर द फर्स्ट 3 months, लेकिन यहाँ कोविड फेज 2 में थोड़ा बहुत काम जो है सो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, हालांकि अप्रैल और मई का महीना अगर आप कहेंगे तो काम काफी कम था, लेकिन जून में फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स वी हैव सीन दैट द सर्ज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्टार्टेड, और जहां जहां पे लॉकडाउन जो है सो कम हो गया है वहां पे आपका एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गया। थैंक यू सर। विवेक जी सर। सर, होम लोन एक सबसे सिक्योर्ड लोन ऑफर करती है सारी बैंक को, बैंक घर खरीदने वालों को। तो आपको क्या लगता है, व्हाई शुड अ होम बायर चूज एसबीआई ओवर अदर होम लोन प्रोवाइडर्स? क्या यूएसपी है अपने एसबीआई होम लोन ऑफर में कि लोग एसबीआई से ज्यादा अट्रैक्ट होकर लोन लें? और कितने तरह की होम लोन्स होती है और उसमें उसकी क्या फीचर्स है? नहीं, इसमें देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बायर आता है तो ये देखता है कि उसको प्राइसिंग क्या है, एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट, जहाँ तक हमारा है वो मार्केट में इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट। और उसमें भी अगर विमेन अगर हैं उसमें अगर को बोरोवर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 basis point हम लोग कम कर देते हैं। तो एक तो वो सबसे ये होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक कस्टमर का जो टेस्ट होता है कि हमको कितने कम प्रोसेसिंग टाइम में और कैसे हमको जल्दी लोन मिल सकता है। सो हमारा फोकस उधर रहता है कि हम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके और डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करें। तो कस्टमर अट्रैक्टेड होते हैं हमेशा कि हम अगर जाएंगे स्टेट बैंक में तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। प्लस इसमें क्या है कि टेन्योर भी लोग देखते हैं कि हमको कितने साल तक का ये लोन जो है सो मिल सकता है, उसमें हमको और किस किस तरीके की फैसिलिटी मिल सकती है। तो जैसे आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ मैक्स गेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जिसमें कि आप अगर लोन लेते हैं तो अगर आपका कोई भी क्रेडिट आता है उसमें डाल सकते हैं और एक सर्टेन ड्रॉइंग पावर तक आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को फायदेमंद होता है कि जैसे सैलरी क्रेडिट हुई तो आपका, हमारे यहाँ देखिए क्या है कि डेली
इंटरेस्ट रिड्यूसिंग रेट पे लगता है, डेली बैलेंस जो है आपका उसके इंटरेस्ट रिड्यूसिंग पे, ये नहीं कि मंथली जो आपका बैलेंस रहा उस पर हम ले लेते हैं। तो आज अगर आपने उसमें पैसा जमा किया है तो आज आपका जो बैलेंस है उसी पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो अगर धीरे धीरे आप उसमें पैसा निकाल रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी उसी तरीके से लगेगा, तो कस्टमर को उसका एक एडवांटेज मिल जाता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि हम डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, टेन्योर हमारा ज़्यादा होता है, और हम इसमें टाई अप में हम बहुत सारे बिल्डर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप टाई अप में जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लीगल और वैल्यूएशन ऑलरेडी करवा के रखते हैं, तो अगर हमारे लॉ ऑफिसर ने और हमारे लॉयर ने इसको वेट कर दिया है कि हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक है, तो लोग इसके प्रति भी अट्रैक्टेड होते हैं कि भाई अगर ये स्टेट बैंक का टाई अप है तो जरूर इसमें प्रॉपर्टी जो है सो सेफ है जो हम बाई कर रहे हैं। जो कंसर्न, मेजर कंसर्न होता है लोगों का प्रॉपर्टी बाई करने के पहले कि पता नहीं हम बाद में कोई हडल नहीं हो जाए, इसमें कोई लीगल ट्रबल नहीं आ जाए। तो ये सारी चीजें जो हम लोग इसमें लेके के चलते हैं, इससे काफी लोगों को एडवांटेज मिलता है। तो एक मैंने मैक्सिगन की बात की, दूसरा एक टर्म लोन जो होता है होम लोन का वो हो गया, तीसरा हम लोग टॉपअप का भी लोन देते हैं। अगर आपका 1 साल तक अगर कोई आपका होम लोन रेगुलर चल रहा है जिसमें कि स्टैंडर्ड है आपका एसेट, तो आपके ऊपर उसके ऊपर आपको टॉपअप दिया जा सकता है, मतलब लोन टू वैल्यू, जैसे आपका लोन और उसका वैल्यूएशन जो है आपका प्रॉपर्टी का उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देख के जज करके आपको टॉपअप का एलिजिबिलिटी फिक्स करते हैं कि आप कितना टॉपअप ले सकते हैं। और ये टॉपअप लोन जो आप लेते हैं ये किसी भी काम के लिए आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, कोई दूसरे पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए आप होम लोन वो टॉपअप फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी फैसिलिटीज हम लोगों ने दे रखी है। एक रियलिटी लोन भी हम देते हैं जिसमें कि आप लैंड परचेज करके उस पर हाउस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो रियलिटी लोन में आपको जो जमीन है, जमीन को परचेज करने के लिए भी आपको बैंक लोन देती है। सर एक और आपका प्रोडक्ट था जो शायद रिवर्स मॉर्टगेज, जैसे ओल्ड लोग हो जाते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। नहीं, रिवर्स मॉर्गेज में भी वही है कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो वैल्यूएशन हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद उसका एक प्राइस फिक्स करके आपको वो पैसा आपको दे दिया जाता है, और हर महीने आपको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। उसमें फिक्स कर दिया जाता है कि क्या आपको मंथली आपका जाएगा, और बाद में जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर बैंक उसको रियलाइज़ कर लेते हैं। सर आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोविड रिलेटेड भी और अदर देन दैट? कोविड रिलेटेड तो देखिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज होगा कि भाई अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो सबसे पहले आप अपने आप को वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दे रखी है। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप जहाँ भी हैं आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, अपने फैमिली मेम्बर्स का कराएं, अपने पूरे इकोसिस्टम में जो भी हैं उनका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमें बहुत ही कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, बिकॉज वी नेवर नो दैट ये जो डिजीज़ है इसमें पता नहीं किस तरीका का म्यूटेशन होता है और वेरिएंट आते हैं, जैसे अभी एक नया वेरिएंट भी हम लोग सुन रहे हैं। तो हमें जो कोविड प्रोटोकॉल है वो हमको फॉलो करना है। SMS जो कि बार बार कहा जाता है कि आप हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग, सो दैट वी हैव टू फॉलो। एंड इसके बाद बैंक की तरफ से मैं ये कहूँगा कि जो हमारे साथ कस्टमर नहीं जुड़े हैं वो बहुत ही जल्दी हमसे जुड़ें, क्योंकि आपको बहुत सारी सुविधाएं बैंक प्रोवाइड करेगा। ना केवल बैंकिंग के क्षेत्र में आपको प्रोवाइड करेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देगा, वेल्थ क्रिएट करने के लिए देगा। तो हम लोग जो बैंकिंग अभी कर रहे हैं इसमें हम लोग भी टेक दैट कि बैंकिंग में हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह हम लोग काम करना चाहते हैं अपने कस्टमर के लिए, कि केवल ऐसा नहीं कि आप केवल डिपॉजिट करें या आप लोन ही लें, इसके अलावा आपका क्या अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको फ्यूचर में आगे ले जा सकता है। हमारे बहुत सारे सब्सिडियरीज हैं, जैसे SBI लाइफ है, SBI म्यूचुअल फंड है, या हमारे SBI जनरल है। तो इसके तहत भी हम लोगों को, कस्टमर को हम एडुकेट करते हैं कि आप कौन सा पॉलिसी लेंगे जो कि फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो प्लेथरा ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप हमसे एक बार जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीका से स्टेट बैंक का फायदा उठा सकते हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स हु आर watching this program, that if you are not connected with the state bank, please do visit our any of the branch, or please visit our site, and you can also see that how to open one account through video KYC. So if you want to open account, if you don't want to visit the branch, you can open the account on YONO portal through video KYC. So that is all my message to all the viewers who are watching. Sir, thank you very much for your valuable insight. इस वक्त मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर कि एज पर द लेटेस्ट IRS फिगर्स
नवभारत महाराष्ट्र में 34 लाख रीडर उसको पढ़ते हैं और हमारी मराठी एडिशन नवराष्ट्र उसे 6 लाख रीडर्स पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 40 लाख से ऊपर रीडर्स हैं महाराष्ट्र में जो हमारे अखबार को पढ़ते हैं सर। और अगर हम अपने छत्तीसगढ़, भोपाल, उड़ीसा, ये सब नेशनल एडिशंस भी मिला लें तो हमारी कुल रीडरशिप 80 लाख है। और अगर हमारी टारगेट थी 1 करोड़ पहुंचने की, लेकिन पिछले वर्ष कोविड होने के कारण थोड़ी सी इसमें ब्रेक लग गई है, बट जल्द ही ये प्रोसेस खत्म, ये कोविड की पैंडेमिक कम होगी तो हमें लगता है कि हम अपने 1 करोड़ लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस, and I'm sure you will get a lot of benefits having listened to it and having seen it. Thank you, sir. Thank you for your valuable time. Thank you very much. Thank you. Thank you, you and your team, entire team.